കൈലാസത്തിലെ ശിവനും സ്വർഗലോകത്തെ ബ്രഹ്മാവും തമ്മിൽ പിണങ്ങി. ദേവന്മാരും കലങ്ങി വീണു. ദേവകോപം പൂണ്ട ശിവൻ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ 5 തലകളിലൊന്ന് പറിച്ചെടുത്തു. അഭിമാന ചിഹ്നമായി തലയും കൂടി ശിവൻ കയ്യിൽ തന്നെ കരുതി. ഒരു ദിവസം കാശിയിലെത്തിയപ്പോൾ ആ തല ഭൂമിയിൽ മറഞ്ഞുപോയി. അങ്ങനെയാണ് പുണ്യനഗരമായ കാശിയുണ്ടായത്. As you step into the ancient city of Varanasi, the air buzzes with a unique energy, a palpable sense of vitality that defies mere words. It's as if you've stumbled upon a slice of scenery plucked from the very garden of gods themselves. Amidst the serpentine lanes and bustling guards, every morsel of Varanasi teems with life and stories waiting to be told. Varanasi is more than just a city. It's a tapestry of emotions weaved by a roller coaster ride through the depths of human experience. Here, death is not a sorrowful moment, but a joyous celebration, a doorway to new beginnings. పిండం పెట్టడం అన్నట్టు మదర్ కానీ పేరెంట్స్ ఎవరైనా చనిపోయినప్పుడు సాక్షికి వచ్చి ఇట్లా పిండం పెడితే పుణ్యం వస్తుందని చెప్పేసి శాస్త్రం చెప్తుంది. A place that persuades you to surrender everything you hold dear and get lost in its enchanting spirituality. Such is the allure of Varanasi, a place where the mundane and the sacred converge, where every moment is a testament to the balance of life and death, and where every soul finds peace amidst the chaos of existence. Yet, amidst its mystique and wonder, Varanasi remains a city of the people, of civilization and commerce woven into the very fabric of its ancient streets and gullies. And herein lies its actual magic, this symbiotic relationship between the land and the people, a harmonious and vibrant beauty that leaves travelers awestruck and humbled in its wake. Picture this scene, bustling vendors trying to sell their trinkets and knickknacks, beckoning tourists and pilgrims alike. Chai sellers, their Nimbu chai infused with the masala of Varanasi's soul, offering respite from the relentless heat of the day. Oarsmen, their oars punching rhythmically through the sacred waters of the Ganges, inviting travelers on a journey that transcends time and history. Amidst it all, the Pahalwans, embodying the very essence of raw strength and devotion, honoring their beloved Lord Hanuman. Now, let us hear the voices of Varanasi. मेरा नाम रमाकांत चौहान है। मैं सर चाय बेचता हूँ घाट पर और मैं यहाँ सर 27 साल से रहता हूँ। मेरा नाम राधिका रॉय है। रात में हाँ, मेरा यहीं पे जन्म है। छोटे ही से बहुत कष्ट करके आ रहे हैं। This is a destitute home, na? Mother Teresa destitute home. Okay. So here we have only the orphanage home. ये शिवाला घाट तोड़गे तो 1971। हम ये काम 20 साल से नाव चलाना शुरू किए। जो है 25 ईयर्स ओल्ड शॉप, हम लोग इसी में अपना रहते हैं। अपना फैक्ट्री पांडेपुर में यहाँ से 2 घंटा आपको लगेगा जाने। ओके। यहाँ पे हम लोग लगभग व्यायाम करते हुए 2009 से करीब 12-14 साल हो गए हम लोगों को। हाँ, घाट के ऊपर ही पेंटिंग करते हैं। जो शौकीन है हमारे पास आते हैं पेंटिंग लेते हैं। मेरा नाम अनीता साहनी है। मैं स्टूडेंट हूँ, क्लास 11 से पढ़ती हूँ। इस टाइम मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं जब से सर चाय बेच रहा हूँ, मैं पहले सर ठेकेदारी का काम करता था, यानी मिस्त्री का। इसके बाद सर कुछ दिन तो हमारा हालात थोड़ा सा बिगड़ गया था सर, तो मतलब कुछ हमारे पर कारण आ गया जिसके वजह से मैं हम वो काम मतलब नहीं कर पाए। और इसके बाद सर हमारा लड़का एक तरबस बेचा होता है, पापा का हालत ख़राब हो गया है, तो हम चाय बेचे कि भाई घर गृहस्थी कैसे चलेगा। सुबह का रूटीन हम लोग का है सबसे पहले उठना, सबसे पहले अपना जो भी डेली का रूटीन है फ्रेश हुए अपना, उसके बाद जो भी ड्राई फ्रूट वगैरह है उसको लेके आके गुरु के शरण में हम लोग पहले सबसे पहले नतमस्तक, फिर बजरंग बली को ध्यान करके फिर अपना जो भी व्यायाम है उसको स्टार्ट करते हैं।
और दिनचर्या हम लोग के यहाँ से अखाड़ा बंद होता है 11 बजे सुबह 11 से। बजे। हाँ, फिर शाम को अखाड़ा अपने टाइम पे खुल जाता है। जितने भी हमारे मित्र भाई हैं अपना व्यायाम करके फिर उसके बाद आराम से। We get here people always see, sometimes police they bring, sometimes workers they bring, sometimes people, and just now when you came, one man came to Sona, he going to keep now his father here now. Some people own son, own daughter, they will come, and some people they know because it's Kashi Nagar, huh? So mostly no Christians not very now house only sisters. Only sisters are Christians. Others are mostly Hindus and very few Muslims are here. So we, but when we take even without the police paper need and they with the stamp, police stamp. That means after 20 they will go away or they will die. People without family, no people will live. Because of some problem, maybe mental problem, maybe they are handicapped or they were wounded, so they cannot keep in the house. So they are giving to us. So without the family, nobody will be there now. So some problem they put out for police they bring. Some the other day we got one lady, she was going to die in the water, Asighat. So they saw, especially she was in the water, one old lady. So police they brought her. And one child, she was getting fit. One young girl, she was getting fit and she was making the chapati. So she fell down in the chula, lakadi ka chula, na. She fell down. She got fit suddenly. She was while she was making. So mother. So her here she could cut. Ladies when they go out, young ladies, like old ladies also, gudiyas, people, you know, sex. So ladies we try to keep, will not send. Men they give trouble and things, and we put them because they anyhow they can live. Men they can live, but ladies they have somebody misuse them. So we get every month we have admission, death, discharge. Every month. 20 साल से हाँ, इसमें 20 साल से ये हम अपनी नौकरी, हम अपना पहले साड़ी भी बिनते थे, फिर उसके बाद नाव चलाने सीखे, फिर उसके बाद पान की दुकान अपना किए। तो रोजगार सही समझ नहीं आया तो अपना नाव चलाते हैं। जब बरसात पानी बढ़ती है तो उसके बाद हम अपने रोजगार में चले जाते हैं। फिर अपना दुकान दौड़ी जो भी खोलते हैं, पान की दुकान थी, खिलाने खुले थे, फिर पकौड़ा वकड़ा ये सब दुकान खुले थे। तो समझ नहीं आया, धंधा मतलब कि जैसे चल रहा है ना, बहुत अजीब चल रहा था, इसलिए हम ये नाव ही पकड़ लिए हैं, नाव चला रहे हैं। जब सीजन रहता है तो नाव चलाते हैं, जब सीजन नहीं रहता है इसकी नाव की, पानी बढ़ जाती है, बरसात में पानी बढ़ जाती है, तो बंद हम लोग के मोटर ये नाव नहीं चलेगी, ये मोटर बोट चलती है जो सब वाली। अभी तो हम घाट पे बैठते थे, पहले हम भी नौकरी करते थे हैंडीक्राफ्ट में, काफ़ी साल नौकरी की है, अभी घाट पे ही बैठते हैं। घाट के ऊपर ही पेंटिंग करते हैं, जो शौकीन है हमारे पास आते हैं पेंटिंग लेते हैं। इसका पीस निकाल देते हैं, मदर मुझे मिल जाए जड़ छुपा देते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं होता। जंगल से पकड़ते हैं। हाँ, ये किंग कोबरा जंगल से पकड़ते हैं। हाँ, यहाँ महादेव का कुत्ता पकड़ते हैं। इसके साथ साथ ये वृद्धि है कि मैं चाहता हूँ कि बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं वो बच्चों को शिक्षा दी जाए। जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे या तो पढ़ रहे हैं जिस कारण वो पीछे रह जा रहे, नहीं पढ़ पा रहे, तो हमारी संस्था जो है खुला आसमान संस्था है, वो क्या कि बच्चों को समाज मतलब जो है फ्री में शिक्षा देती। अभी तो फिलहाल मैं तो ये अभी 1-2 महीने हमको हुआ, लेकिन ये खुला संस्था 5 साल हो गया। 5 से जी, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर मेरे बच्चे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर ये बच्चे पढ़ कर अगर कुछ बन जाए, अगर कोई जैसे कोई IAS बन जाए, कोई टीचर बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई वकील बन जाए, तो उससे बड़ा मुझे खुशी क्या होगा। वो खुशी के लिए हम जी पैसा नहीं ले रहे। हाँ नहीं जी, मैं बस चाहता हूँ कि बच्चे हमारे मतलब हमारे मोहाल में जो बच्चे कोई आज तक कुछ नहीं बन पाया, तो बच्चे कुछ कम से कम अपने मोहाल का नाम रोशन करें, हमारा नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। मैंने पहले लॉकडाउन में फ्री क्लास में अपने घर पे 1 ईयर तक दी हूँ, फ्री क्लास 1 ईयर लॉकडाउन टाइम में, कोविड के टाइम में मैंने बहुत बच्चों को हेल्प किया है पढ़ रहे हैं। और यहाँ के बच्चे पहले स्कूल ही जाते थे, अब स्कूल जाने लगे हैं। कुछ गवर्नमेंट भी स्कूल है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे स्कूल है, बच्चों का सारा कुछ देखते हैं, फ्री में एजुकेशन सारा देखते हैं, टाइम पे लंच है और बच्चों की पढ़ाई पे सारे कुछ पे लोग ध्यान देते हैं। साड़ियाँ जो एक साड़ी बनने में कम से कम 1 वीक टाइम लगता है, एक बनाने में।
इसको आपको बैठ कर जो है 2 से 4 वीवर्स मैन बैठ के बनाते हैं, ठीक है ना। अब वहाँ से बंद करके यहाँ पे आते हैं हम लोग सेल करते हैं। और बनारस साड़ी में क्या है 50 वेराइटीज़ क्वालिटीज़ होती हैं इसमें, डिफरेंट क्वालिटीज़ है इसमें आपका। अगर मेन बनारसी साड़ी जाएंगे तो समझिएगा आपको 2000 से स्टार्टिंग आपका होता है मेन का आपका, ठीक है। उसके बाद आप जितना तक चले जाइए 5000, 10,000, 20,000 जितना आप जा सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। ये तो हमारा अपना शॉप है, अपना शॉप है, हमको कोई ये नहीं है, अपना शॉप में हम रहते हैं। हमारे यहाँ जो है हमारे 3-4 शॉप हैं यहाँ पे। अभी 3-4 शॉप्स हैं? 3-4 शॉप हैं हमारे यहाँ पे। हम लोग उसी जो अपना जो है सब शॉप में हमारे घर के ही लोग, कोई बाहर के लोग नहीं, सब घर के लड़के लोग हैं, अपना शॉप चलाते हैं, बैठे रहते हैं, देखते हैं सब। साड़ी में बनारसी में क्या है मेन होता है व्यापार बिजनेस साउथ इंडियन। यहाँ पे साउथ इंडियन से ही मेन व्यापार है। अगर साउथ इंडियन अगर नहीं है तो समझे व्यापार डाउन मेन। बनारस में जहाँ भी जाएंगे आपको साउथ इंडियन मिलेगा। होता है ऐसा नहीं, माँ गंगा के पास बैठे, माँ शीतला माता है, हमेशा प्रार्थना करते, वो हमेशा हमारा साथ देते, सबका नहीं जानते। मन की बात जो माँ से कहते हो माँ सुनती। माँ गंगा का जल सर पवित्र माना जाता है। कोई भी पूजा पाठ या मतलब कोई भी शुभ काम किया जाता है तो वहाँ माँ गंगा का जल सर छिड़का जाता है, क्योंकि माँ गंगा पवित्र है। इनके जल से सारा शुद्धिकरण हो जाती है सर, पवित्र हो जाती है। अगर आदमी नहीं भी स्नान करे, माँ गंगा का जल सर छिड़क ले तो मतलब शरीर पवित्र हो जाता है। जैसा कि इंसान बिलीव करता है, विश्वास करता है कि भगवान है, तो वास्तविकता में भगवान है। और बजरंगबली से अखाड़े से एक अलग ही ऊर्जा है। अगर अंधकार है तो वैसे चमत्कार भी है, ठीक है। तो अगर हमारे दिन सांस भी चल रही है तो भगवान पे ही बिलीव करके चलिए। किसी भी चीज़ पे अगर हम सबसे पहले उठते हैं सोते हैं भगवान का नाम लेके ही, तो एक अलग ही ऊर्जा हमारी हनुमान जी को लेके, प्रभु रामचंद्र जी को लेके। देखिए पैसा है तो दुनिया में हर कोई है, या भाई हो या बंधु है या माई हो या कोई भी हो। आप पैसा आप उनके यहाँ पहुँचाएंगे देंगे ना तो आप तारीफ होगी, आपकी इज्जत होगी। नहीं तो कोई भी कुछ नहीं है, ना आपकी बीवी है, कुछ ना कुछ होबे करेगा आप में। ये है। तो ये अब जमाना ऐसा पलट गया है कि अब सब पैसे का मोल हो गया है। यहाँ पे पैसा है तो सब दुनिया में है, नहीं कुछ भी नहीं है। जो भी है सब पैसा है। कि जो आदमी महानता होती है लोगों का, कि हम प्रेम से बोल रहे हैं और प्रेम से ही जीवन चलना चाहिए, पैसा थोड़ी नहीं है। मैं कुछ लोग पैसे के ही आदमी को तोल देते हैं। Like for us, Christians, we are for us Rome. Rome is for us holy land. Yeah? So for them, they say this is our holy land, Hindus. Yeah? So they don't want to go. This is old men and ladies. And then from here we don't go. We won't die here because we'll die here. We go straight to heaven because this is Ganga. Ganga. So they don't want to go. This lady also saying, I will not go anywhere. I will stay here. So they are happy. All people are very happy to stay because of the Ganga. तो बनारस की एक अलग ही महत्व है, क्योंकि धर्म स्थल है और धर्म के स्थल यहाँ लोग आते हैं। मतलब जैसे मृत्यु के बाद लोग काशी में एक अलग ही वो होता है। यहाँ साक्षात शिव भगवान भोले बाबा यहाँ खुद विराजमान है। 1 या 2 पलहर भी वो राउंडिंग भी करते हैं हवा के रूप में या किसी भी रूप में, वो तो कण में शिव जी। दूसरी बात ये यहाँ का माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद। बनारस में जो माँ अन्नपूर्णा मंदिर विश्वनाथ जी जाएंगे तो माँ अन्नपूर्णा मंदिर टेम्पल, माँ बनारसी साड़ी पहनते हैं, तो उनके प्रसाद के रूप में लोग ये ले जाते हैं। देखिए मुख्य 3 प्रसाद है, 3 ही यहाँ का प्रसाद है मेन, अन्न वस्त्र सिंदूर, ये 3 यहाँ का प्रसाद है। अन्न मतलब होता है माँ अन्नपूर्णा के मंदिर में जाएंगे तो वहाँ अनाज चढ़ाना, आपको अन्न देंगे, ठीक है। उसको आप घर ले जाइए, घर ले जाके थोड़ा सा साफ कपड़े में बांध करके भगवान जी का आसन में रख दीजिए, बाकी भंडार में मिला दीजिए, हमेशा आपका घर में बरकत रहेगा। सिंदूर एक तो ले जाइए नया लेकर के, माँ को चरण में स्पर्श करके उसको घर ले जाइए, लेडीज़ को दे दीजिए, वो आधा अपने डिब्बे में मिला लेंगे, आधा भगवान जी का आसन में रहेगा, हमेशा जीवन भर मंगलमय रहेगा। वस्त्र माँ अन्नपूर्णा बनारसी साड़ी पहनती है, ये प्रसाद के रूप में लोग माँ का प्रसाद समझ कर लोग इसको लेते हैं। झूठ बोल के नहीं बेचते, जो सच है वही बोलते हैं।
प्लास्टिक है तो प्लास्टिक, ऑरिजिनल है तो ऑरिजिनल। ऐसा बहुत सा रुद्राक्ष निकला है जो प्लास्टिक का है। जिन लोग और ये सिस्टम हम लोग काशी में जितने भी भिखारी है, जितने भी गरीब है, ऐसा कोई नहीं कि भूखा सो। ये बाबा भोलेनाथ का बहुत बड़ा आशीर्वाद और देन है। यहाँ के लोग कभी भूखे नहीं हो सकते। ये जितने भी आप देख रहे हैं ना भिखारी बैठते हैं, कहाँ से इन लोगों को प्रसाद खाना पीना मिल ही जाता है, कहाँ से भी मिल जाता है, मिल ही जाता है। अच्छा मिलता है, हम लोग से भी अच्छा मिलता है। हाँ, और रही बात सर कमाने खाने वाली बात कहते हैं, ये देखिए सर महानगर है, यहाँ सर बहुत रोजगार है सर। चाहे आप सर एक चना भी बेचिए, चाहे सर पूछो पूछिए दाना बेचिए, चाहे कोई भी चीज़ एनी बेटी बेचिए, और ये बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि हमारे नगर में कोई भूखा न रहे सर। अगर आपके पास एक भी पैसा नहीं है, अगर आप परीक्षा लेना चाहते हैं सर, तो आपको ऑटोमेटिक यही बैठे रहिएगा, भोजन पानी सब मिल जाएगा सर। यहाँ तक अन्यथा पैसा कौड़ी सब मिल जाएगा सर। तो इसीलिए बनारस में जो भी है सब आनंद में है, या किसी के पास है या नहीं है वो भी आनंद में, भलो आपको वो भी कुछ करता हो लेकिन वो आनंद में, क्योंकि यहाँ साक्षात मां अन्नपूर्णा भी विराजमान है। तो यही बनारस के एक हर समय आप आएंगे तो बनारस एक नया देखेंगे कि ये बनारस को क्या है। तो आपका जो निगाहें हैं, जब आप देखेंगे आप शांति में बैठकर बनारस को, तो आपको एक वो लगेगा कि हम यहीं रह जाए। और ये घाट का हर एक सीढ़ी बोलता है, हर एक पत्थर बोलता है कि देखो हम आज भी पुराने हैं लेकिन अपने ताव में खड़े हैं। ये अपने आप को दर्शाता है कि देखो अभी तुम बना रहे, अभी हम पहले के टिके हुए, कि हमको मरम्मत भी नहीं कर रहे हो लेकिन हम भी अभी टिके हुए। बनारस में ये सारे वो है कि देखिए आज भी बनारस खड़ा है। कितने सारे बाढ़ आए, बहुत सारे बाढ़ हम लोग बचपने से देखते आ रहे हैं, कितने बाढ़ आए, ये घर आज भी जैसा तरह है बनारस। इसलिए बनारस एक आनंदमय कहिए या उसका एक अलग ही वो है, आपको आनंद हुआ। तो इसके बाद तो हम सोचे कि शायद जब हमारी कुछ हालात सही हुई तो हम एक दिन केतली लेकर सर आए घाट पर, तो मैंने सर 60 रुपया का चाय बेचा। 60 रुपए का? यस सर। दूसरा दिन फिर आया सर तो 100 रुपया का बेचा। तीसरा दिन आया तो सर मतलब दिन प्रतिदिन यानी मतलब कमाई बढ़ते गया सर। आज मतलब आपके आशीर्वाद और गंगा मैया बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से सर आज मतलब कहना नहीं चाहिए ये बात, लेकिन आप लोग भाई पूछने के लिए आए हैं तो कहना अनिवार्य है। आज सर कम से कम माँ के आशीर्वाद बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद 1000-2000 कमाई सर। चाय बेचता हूँ, बहुत चाय बेचने वाले हैं सर, लेकिन मैं बहुत खुश रहता हूँ क्योंकि हम जानता हूँ सर, मैं पढ़ा लिखा हूँ सर, ये बात नहीं है, मैं IAS किया हूँ सर, इसलिए हम हर बात को जानता हूँ कि साईं इतना दीजिए ताको कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूँ न साधु भूखा जाए। सर मैं जानता हूँ कि हमको कुछ लेकर नहीं जाना है, अगर हमको 2 रुपया जिस दिन कमाई होती है तब पर भी उतना ही खुश रहता हूँ, और 2000 भी कमाई होता है तब पर भी उतना ही खुश रहता हूँ। और अन्यथा ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन एक मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ, अगर नहीं भी कमाई होगी तब पर भी खुश, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे खाने का कमी नहीं है, पीने का कमी नहीं है, वस्त्र का कमी नहीं है, सब बाबा भोलेनाथ के नगरी में प्राप्त है सर। तो दुखी मैं क्यों रहूँ सर। Before we had so many foreigners who used to come, we had no such a problem. But after Corona, and those who got business also, na, many of them died. Those who helping us, foreigners, we have the local one fellow, he used to give us every like 2 hours time of that he used to give, our vehicle used to go and bring food and vegetable. Now vehicle also we give up. He used to tell me one day before, and our driver used to go and bring one food, and we had in Mahindra vehicle. Oh, ate all the vegetables used to give. Corona, after my 2021 I came, a month of April he died with Corona. मिलने के ऊपर है, मिल जाता है तो कभी 1000, कभी 500, कभी नहीं भी। बहुत से कमाने वाले हैं, जिसको नसीब में जो मिलता है मिल जाता है। अभी है हम मिले, जो हम ले गए तो हमको आधा मिलेगा, उसमें से आधा नाव वाले के। तो ये नाव किसी और का है? हाँ, आप सब चलाने के लिए? चलाने के लिए। वो हमारा छोटा भाई है, हम अपना नहीं खरीदे नाव, वो छोटा भाई हमारा है। चलिए न, पहले वो थी जमाना
कि एक लोग कमाते थे, 4 लोग खाते थे, वो ज़माना था। तो ये अब ज़माना ऐसे पलट गया है कि अब सब पैसे का मोल हो गया है। यहाँ पे पैसा है तो सब दुनिया में नहीं, कुछ भी नहीं, जो भी है सब पैसा है। कितने लोग एक दिन आपसे फोटो लेते हैं? दिन भर में 2-4 हज़ार, 4,000 चलिए दिन भर। जब त्योहार वार रहता है तो बहुत लोग आते हैं। ऐसे आजकल ठंडे में बाजार कुछ कम चल रहा है। जब गर्म आता है, जो मद्रासी लोग बाहर से आते हैं ना, बहुत भीड़ होता है। उस समय हम लोग का दुकानदारी अच्छा चलता है। इस समय सारे जितने भी घाट के लोग हैं, सबका बाजार डाउन वहाँ करा लेते, हो जाता है। 200-300 रोज कमाई कर लेते हैं, कभी 500। पैसा आप लोग से मिल जाता है। ऐसे आश्रम है, कुछ साधु लोग को तो उसमें जाते हैं, भोजन वोजन करने, वहाँ से मिल जाता है। जाने आने के कहीं किराया उराया लगता नहीं है, ट्रेन व्रेन का कोई किराया देते नहीं। Though it might have the designation as the city of death, through a few observatory glances into the lives of its people, we have realized that Varanasi is much more than just that. More than the city of death, it is also simultaneously the city of life. In these labyrinthine gullies and ghats, which house more history than a few Romes and Greeces combined, we saw people from all backgrounds and communities living their everyday lives. The fact that the holy land of Varanasi caters to every demographic, for better or worse, is truly something that is quite marvelous to behold. Even though Varanasi has had to endure thousands of years of disasters and events that would render it inhabitable anywhere else, it still continues to be home to its people. To the eyes of a purist, it may not be in the best of conditions, but throughout its lifetime, Varanasi has grown and evolved to meet the needs of its people. Most of the people we interacted with say that no one there sleeps with an empty stomach. And when we were there, we saw why. People going around 3 times a day, distributing free food and contents and ashrams housing the destitute, ensure that this remains a fact. Beyond that, for everyone who wants to make a living, whether it be through tea selling, selling goodies, selling their craft, boating, touring, etc., Varanasi ensures that it gives them a means for survival. That is what we believe truly makes Varanasi far more beautiful than its scenic beauty. It is much more than the magnificent temples and ghats. Varanasi is beautiful for its relationship with its people.